खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि Praise the Lord, dear Jago family. So good to see all of you once again this beautiful morning, and we are really happy, really grateful that once again God has given us this beautiful moment to meet and to glorify Him, to give Him praise and honor. परिवार आप सबको फिर से जय मसीह की और एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है हमारी रविवार की सभा में। और हमारे मन बहुत ही ज़्यादा आनंदित हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में जाएंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, इबादत देंगे और उसके कलाम से सुनेंगे। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 ब्लेसेड रिजरेक्शन डे। आप सबको पुनरुत्थान की बहुत बहुत शुभकामनाएं होने पाए कि ये दिन आप सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। द बाइबल सेज इन एक्ट्स 2:24 that death could not hold him. God raised him from the dead. वचन बताता है प्रेरितों के काम 2 के 24वें पद में कि मृत्यु उसको रोक ना पाई, क्योंकि परमेश्वर ने, पिता ने उसको मुर्दों में से जिलाया। जीसस क्राइस्ट वॉज रेज्ड अप बिकॉज ऑफ यू एंड मी। और होने पाए कि आज का ये दिन उन सारी चीज़ों को पुनर्स्थापित करने पाए जो शैतान आपके जीवन में चुरा चुका है। लेट एवरीथिंग बी रिस्टोर्ड बाय टुडे। बी एक्सपेक्टेंट बिकॉज गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट रेस्टोरेशन इन टू योर लाइव्स एंड वी हैव अमेजिंग वर्शिप, amazing word and declarations. So let's move ahead with a small prayer. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, in precious name of Jesus, Abba Father, we come before you, Lord. We thank you for this precious moment. We thank you for this precious day, Lord Jesus, as we remember that you were raised from the dead, Lord Jesus, for us. And Lord Jesus, we declare that restoration, that deliverance, that breakthrough into our lives, Abba Father, Lord Jesus. We exalt you, we glorify you, we magnify your name, Abba Father, Lord Jesus. We thank you for this precious moment, precious people, Lord Jesus. We ask your Spirit to lead us, Abba Father. We ask your Holy Spirit to lead us and guide us, Abba Father, Lord Jesus. We submit dear Pastor Sheldon into your precious hands, Abba, as he brings the word, Lord Jesus. Guide him according to your will and your spirit, Lord Jesus. Let everyone who has joined us, Lord Jesus, be blessed, and let the word be fruitful in the hearts, Lord Jesus. Let no one go empty-handed today, Abba Father, Lord Jesus. You are the living God. We praise you, we exalt you, and once again I submit all of them into your hands. I cover them into your blood, Lord Jesus. And thank you in Jesus' precious mighty name. Amen and amen and amen. Family, now it's time for recap, and let's watch the recap video together. Let's see how much God has been good to us, how much God has been faithful to us. परिवार, ये समय है recap का। हम साथ में मिलकर recap वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला और विश्वास योग्य रहा है। It has been a week of significant spiritual growth and purposeful gathering as we continue to move forward in the work of the Lord. From March 23rd to 29, we dedicated ourselves to the Enlarge the Tent meditation, seeking the Lord's heart for the expansion of our borders. We began our corporate activities on March 24th with the Jago DNA training, followed by a vital partners meet on the 25th. Where we gave thanks for those who co-labor with us in this vision. On March 26, we convened for Kings and Queens, and on March 28th, we celebrated the release of Manjhi. That same Saturday, our brothers gathered for the Men of God by Brother Disciple Blitz to strengthen one another in the faith. We concluded this powerful week on March 29th with our JSS Palm Sunday service, centering our hearts on the necessity of a clean thought mind as we enter this most holy season. We extend our deepest gratitude to our partners and well-wishers. Your continued support and faithful prayers are the foundation upon which Jago Ministries stand. So yes, family, now it's time for testimonies. Let's hear God's goodness together. Let's hear that how amazing work God is doing among us.
परिवार, ये समय है गवाहियों का। हम सुनेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर आज भी बहुत अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़कर वो आगे करने के लिए जा रहे हैं। एंड योर टेस्टमनी स्ट्रेंथन्स आवर फेथ। सो इट्स टाइम फॉर यू, लेट्स शेयर गॉड गुडनेस। Praise the Lord family, myself Jennifer. I have been part of a Jago for many years and I'm serving as an intercessor also in translation and JPF team. Through Jago family devotion and Pastor Sheldon Bhaiya's teaching, my understanding of God's words has become so real and personal. In my difficult seasons, I experienced His peace like never before. And through the word and the Jago ministry, God gave me clarity of purpose and direction for my life. Last year in the month of November, my TSH level were very high, but I held on the living word and the 2026 declaration that is said to this mountain. I kept declaring in faith and rebuked my condition. After 3 months, that is in the month of March, I tested again. My TSH level went back completely normal. I know it is not by my strength, it is all by Jesus alone. I give all praise, honor and glory to Jesus alone for this miracle in my life. Praise the Lord family. सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नितिका पीटर्स है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आज अपने जीवन में बहुत सारी परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं उनमें से कुछ को गवाही के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ। सचमुच में परमेश्वर महान है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं एक ब्राइडल बुटीक ओन करती हूँ, क्रिश्चियन ब्राइडल स्टोर, न्यू बिगनिंग क्रिश्चियन ब्राइडल स्टोर के नाम से। ये जो मैंने परमेश्वर ने मुझे विजन दिया उसके हिसाब से मैंने इसको 4-5 महीने पहले स्टार्ट किया है। परमेश्वर ने सारे फंड्स और सारी चीज़ों का प्रबंध किया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो एकदम से सब कुछ बूम नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर इसको आगे ले जाने में मेरी स्टेप बाय स्टेप मदद कर रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। उसके ही तहत में भी परमेश्वर की प्लानिंग के तहत मैं जागो टीम से करीब दिसंबर एंड में परमेश्वर ने मुझे जोड़ा और मैं बिज़नेस ब्रेक थ्रू की मीटिंग्स के थ्रू हो और फिर जनवरी से जो सीइंग एंड सेइंग का 40 डे का एक पूरा मीटिंग चली थी उसमें हो, क्या है उससे हम डेली के डिवोशन में और परमेश्वर के साथ में एक पर्सनल टाइम को बिताने के उससे हम जुड़ते चले जाते हैं। और मैं निरंतर बाकी सारे विषयों को भी और डेफिनेटली मेरे बिज़नेस को भी परमेश्वर के सामने रखती आई। जागो प्रेयर फोर्स के साथ भी हमने इस विषय को प्रार्थना में रखा और सबने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उत्तर दिया है। परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं। मैं इस बिज़नेस को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे चलते देख रही हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मदद कर रहे हैं। जैसा कि बोला था पास्टर साहब ने, प्रभु आपके साथ नए लोगों को जोड़ेंगे। प्रभु ने जोड़ा है। नई डील्स देंगे प्रभु ने कहा था परमेश्वर के दास ने और सच में प्रभु ने दी हैं। आज भी मेरा एक ऑर्डर जो है वो डिलीवर होने के लिए तैयार है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और ये यकीन करती हूँ द बेस्ट इज़ येट टू कम। आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप सब इस विषय को प्रार्थना में रखें। मेरे ब्राइडल स्टोर को, न्यू बिगनिंग क्रिश्चियन ब्राइडल को, मुझे, मेरी फैमिली को, सब चीज़ों को प्रार्थना में रखें। प्रभु की असीम आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जागो मिनिस्ट्रीज़ को प्रभु के सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ जो इन चीज़ों को, हम सभी को, हमारी प्रार्थनाओं की विनतियों को परमेश्वर के सामने उठाने में मदद करते हैं, लीड करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। So yes family, now we have come to the time of praise. परिवार, ये समय है खुदावन की प्रस्तिश का, उसके नाम की स्तुति का। एंड द बाइबल सेज इन Psalms 104 that enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Amen. आइए उसके आंगनों में, उसकी उपस्थिति में जय जयकार के साथ प्रवेश करें because we serve a living God. He is the King of Kings, the Lord of Lords. The Bible says that his name is above all the names. So let's praise the name above all the names. And I would like to hand over to the worship team. Over to you. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल बताती है परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है और लिखा हुआ है वो आजकल और युगान युग एक सा। यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था देखो लेकिन अब मैं युगान युग जिंदा हूँ। हालेलुया। क्या सब मिलके बोल सकते हैं यीशु मसीह जिंदा, यीशु मसीह जिंदा, यीशु मसीह जिंदा। इसीलिए हम मिलके कहेंगे
चांदो सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। सब मिलके गाएंगे। चांदो सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तालियां। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। सब मिलके खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हम, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं जाते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। सब मिल करके, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हम, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हम। और जानते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़, ऐसा हमारा खुदा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मिलके कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, होय कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। वो तन्हा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, वो तन्हा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किल
मुश्किलातों में, हर नाउम्मीदी में, हर मुश्किलातों में। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़। लोग छोड़ देंगे लेकिन वो छोड़ेगा ना, आपके सगे छोड़ देंगे, आपको अपना कहने वाले छोड़ देंगे, लेकिन वो ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी, अपने आप को कहें, कभी ना अपनी परिस्थिति को बताएं, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को, अपने बैंक बैलेंस को, जो लोग आपसे बुरा बुरा कहते हैं आपके बारे में, उनको बताएं। हो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा। सुनिए, निशानों में साथ है, मैदानों में साथ है, फिर से निशानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, हर निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, हर निशानों में साथ है। इसीलिए कह सकते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़। मुझे यीशु ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी। आप भी मिलके गाएं हमारे साथ, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला। इसीलिए बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखेगा शैतान नु तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखेगा शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखेगा शैतान नु तू पैरा। मिलके बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखेगा शैतान नु तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखेगा शैतान नु तू पैरा थले। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, जीवन बदलने वाले की, चंगा करने वाले की, छुटकारा देने वाले की, हमसे सदा प्रेम करने वाले की। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। चांद और सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूम
डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश हो। Hello friends, partners, well-wishers, supporters, Jago family members, all of you from around the world that have been generous towards this ministry. This is Pastor Sheldon Bangira with an urgent appeal. We are about to buy a building in Bangalore City as a satellite church. It's already constructed. It has a hall for our satellite church and for fellowship, and it has offices to seat our staff, and it also has a parsonage, and it's an amazing multi-purpose building. We can run boot camps there, and it's going for a price of 1.8 crore altogether, all the expenses put together. Now, this is our prayer. The Lord, we do not want to take over any debts, but we are believing God to raise this kind of money. And friends, we need your support right now. If the Lord is putting on your hearts to give sacrificially, whether it's 10 lakh rupees or 5 lakh rupees or 2 lakh rupees or even 1 lakh, whatever you can do, we have just a limited period of 60 days. So between 30 and 60 days, we want to try and raise at least about 70 to 80% of the budget within 30 days, and probably in the next 30 days, we'll raise the rest. So I'm calling out to you as an urgent appeal. Please do consider this. Please pray about this. And I believe this is going to be a milestone shift for us in Jago at the ministry, for us to cater to the IT professional world, to the Gen Zs. And your seed and your contribution is going to make a kingdom impact for eternity. What you sow right now in sacrifice is going to come back to you in returns and dividends to you and your family over generations to come, and your names will be written in the book of life for all the souls that are going to be added through this ministry over the next 10, 20, 30, 40 years through this Bangalore mission. So please jump in and support this cause ASAP. If you need any more information, just say I am interested, and the team will give you more information on how you can support this. We are structuring this transactions very carefully given the current governmental situations, but this church is thriving and growing, and this is good ground for you to sow your seed. I'm asking you and inviting you to come in and jump in to support us through the Mission Bangalore project ASAP. Thank you so much. So yes, family, now we have come to the time of offering, and offering is the action of trust. परिवार, ये समय है खुदावन के राज में बोने का, और जब हम उसके राज में बोते हैं, परमेश्वर हमारी आशीषों को दुगना कर देते हैं. God delights and multiplies our blessings. So let's open our hearts generously for the Lord. Over to you. If you're already part of a local church, we encourage you to be faithful to your local church pastor with your tithes and offerings. We want you to continue to be blessed, and there is no compulsion to give. But if you do want to help Jago spread the word of God and do the amazing work that our teams and staff do, prayerfully consider becoming a monthly partner for Rs 2,000 only. And if you do not have a local church and consider Jago as your home, we encourage you to start tithing as the scripture teaches us. Now, tithing is God's method to advance the kingdom. It enables us to support our many staff and ensures sustained financial growth for believers like you and me. Let our team know and they will guide you further. अगर आप एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा हैं, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने स्थानीय कलीसिया के पासबान के प्रति अपने दशमांश और भेंटों में विश्वास योग्य बने रहें. देने के लिए कोई दबाव नहीं है और हम चाहते हैं कि आप निरंतर आशीष पाएं. लेकिन अगर आप जागो के माध्यम से फैलाए जाने वाले परमेश्वर के वचन में और हमारी टीम्स और स्टाफ के द्वारा किए गए बड़े कामों में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रार्थना पूर्वक मात्र 2,000 रुपये महीने
सहयोग करते हुए आप हमारे साथ में पार्टनर या भागीदार बन सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्थानीय कलीसिया नहीं है पर आप जागो को अपना घर मानते हैं, तो जैसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना दशमांश देना शुरू करें। मेरे प्रियो, दशमांश परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, हमें अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने का और आप और हम जैसे विश्वासियों के आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा जरिया और माध्यम है। हमारी टीम से संपर्क करें और वे आपकी मदद करेंगे। दिल और जान से गाए महिमा तेरी बताए, दुनिया में सबको सुनाए यहोवा की जीत। हर पल गुनगुनाए, चाह के भी रुक ना पाए, आगे बढ़ते ही जाए जयवंत मंडली। दिल और जान से गाए महिमा तेरी बताए, दुनिया में सबको सुनाए यहोवा की जीत। हर पल गुनगुनाए, चाह के भी रुक ना पाए, आगे बढ़ते ही जाए जयवंत मंडली। हम थे बंदी, प्रभु ने बंधन सारे तोड़े, दी है आजादी और अंदरूनी आंखें खोली। आना तो को यीशु अपने असली पिता से जोड़े, स्वर्ग की आशीषें आई, द्वार सारे खोले। दिल और जान से गाए महिमा तेरी बताए, दुनिया में सबको सुनाए यहोवा की जीत। हर पल गुनगुनाए, चाह के भी रुक ना पाए, आगे बढ़ते ही जाए जयवंत मंडली। दिल और जान से गाए महिमा तेरी बताए, दुनिया में सबको सुनाए यहोवा की जीत। हर पल गुनगुनाए, चाह के भी रुक ना पाए, आगे बढ़ते ही जाए जयवंत मंडली। मिट्टी से हमें उठाकर महिमा में बिठाया, राज्य का वारिस अपना बेटा है बनाया। कब्र से जिंदा करके आत्मा में चलाया, लहू की वाचा से राजाया जग बनाया। So yes family, let's move into the time of worship. आइए परिवार खुदावन की इबादत में चलेंगे, उसके नाम को सजदा करेंगे क्योंकि वो हमारा राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Let's worship the King of Kings, the Lord of Lords, because He deserves the glory, He deserves the praise, He deserves the honor. Let's prepare our hearts to rejoice in His beautiful presence, in His powerful presence. Amen. So I would like to hand over it to the worship team. Over to you. Thrones before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tu hai
आइए सब मिलके कहें, योग्य स्तुति के, ओ तू है योग्य स्तुति के, तू है योग्य स्तुति के। सब तुझ में है बना, सब तुझ में है रचा, तू है योग्य स्तुति के। You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tu है योग्य स्तुति के, तू है योग्य स्तुति के, यीशुआ। सब तुझ में है रचा, सब तुझ में है लिखा, तू है योग्य स्तुति के। Day and night, night and day, let incense arise. Oh, yes, Lord. Day and night, Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, everyone, declare it. Come on, worship the Lord in spirit and truth. incense Oh, arise. yes, Jesus. Night and day, let your Oh, from our lives, Lord. day and night, night and day, let incense Oh, arise. रात और दिन और रात तेरी आराधना। सब मिलके कहें, रात और दिन और रात तेरी आराधना। ओ पूरे मन से, पूरे दिल से। ओ यीशुआ, तेरी आराधना। ओ मेरे जीवन से, मेरे सब कुछ से यीशुआ, ओ तेरी आराधना। ओ सब मिलके कहें, ओ राजाओं के राजाओं की, ओ राजाओं के राजा की आराधना हो। ओ प्रभुओं के प्रभु की आराधना हो। जो था, जो है और जो सर्वदा रहेगा, उसकी आराधना हो। ओ जैसे 24 प्राचीन, ओ स्वर्ग में लाखों दूत बिना रुके, बिना थके इसी बात को कह रहे हैं, ओ यीशु तेरी आराधना, क्योंकि तू पवित्र 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 है यीशु। ओ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब मिलके गाएं और कहें, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब मिलके कहें, उसके नाम की घोषणा करें। ओ कहें, यीशु तेरे नाम की जय मेरे जीवन में, ओ तेरे नाम की जय मेरे परिवार में प्रभु, ओ हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट्स के ऊपर, ओ आज की सुबह में उसके नाम की जय की घोषणा करें। ओ कहें, यीशु तेरे नाम की जय हो प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु तेरे नाम की
ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, है जिंदगी, वो नाम है यीशु। ओ जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। सब मिलके कहे परिवार, यीशु नाम की जय हो मेरे जीवन में। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु बाबा 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 से खेरे गेले 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 में मेरा नाम यीशु की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, हो तेरे नाम की जय हो। Thank you, Jesus. तेरे नाम की जय। Thank you, Jesus. सब तुझ में ही रचा है, सब तेरे द्वारा रचा है प्रभु, सब तेरी ही महिमा के लिए रचा है प्रभु। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह का है। बेटा सारी आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। So yes family, now we have come to the time of word. परिवार, ये समय है खुदावन के कलाम को सुनेंगे, उसके प्रेम को और गहराई से जानेंगे, क्योंकि उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं। His love has no limits. Amen. उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी मोहब्बत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। The Bible says in Isaiah 43:4 that you are precious and honored in my sight, and I love you. The reason that why his love is unfailing, the reason that why his love is limitless, because you were precious to him. You were so honored in his sight that he chose to die for you. He chose to get again raised for you. Amen. वो परमेश्वर जिसने आपसे इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा आपके लिए दिया, और उसी बेटे को उसने हमारे उद्धार के लिए जिलाया। और आज के दिन हम उसी खुशी को मनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए उसके कलाम को सुने, उसकी अद्भुत अद्भुत उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि आज वो हमारे बीच में अपने आप को प्रकट करने के लिए जा रहा है। एंड इफ़ यू बिलीव, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस that presence, that powerful restoration into your lives. And I would like to welcome dear Pastor Sheldon for the time of word. Over to you, sir. Hey, precious family, want to wish you all a very beautiful, happy Easter, happy Resurrection Sunday. प्रिय परिवार, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ और आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। I am so glad and blessed to celebrate 2026 Resurrection Sunday with you all. पुनरुत्थान दिवस 2026 को आपके साथ मनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। Today is the most important day for us as Christians, as followers of Christ, as believers. It is the most important day. मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन वाकई में मेरे प्रियो, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। शायद क्रिसमस से भी ज्यादा, शायद और किसी भी दिन, गुड फ्राइडे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दिन जो हम पुनरुत्थान के दिन को मनाते हैं, क्योंकि हमारी मसीहत इस बुनियाद पर टिकी है कि हमारा मसीह जिंदा हुआ है। It is more important than Christmas. It is even more important than Good Friday because it is the foundation of our belief that our Lord is risen.
हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। एक बार ऐसा हुआ संडे स्कूल में, एक तीसरे ग्रेड के संडे स्कूल के बच्चों के बीच में 10 ऐसे बच्चे थे। उनमें से एक स्पेशल चाइल्ड था, यानी एक बच्चा जिसका नाम था फिलिप। वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, यानी कि जिसको एक प्रकार की एक मेंटल बीमारी है। अब इन बच्चों के बीच में उनके टीचर ने उनको एक छोटा सा काम दिया, एक असाइनमेंट दिया। एक प्लास्टिक के अंडे को हर एक बच्चे को पकड़ाया और कहा, जाओ बाहर ढूंढो पार्क में, गार्डन में, ये संडे स्कूल में हो रहा है, जाकर ढूंढो कि कोई भी जीवन का यानी पुनर्जीवन या पुनरुत्थान का चिन्ह को ढूंढो और लाकर इस छोटे से बास्केट में या इस अंडे में, प्लास्टिक के अंडे में डालकर लेके आओ, हम देखना चाहते हैं। In the third grade Sunday school of 10 children, there was a boy named Philip. He was born with Down syndrome and he was a part of a group. And one resurrection Sunday, the teacher gave him a plastic container shaped like an egg. And the assignment was to go outside and find a symbol of new life. अब मेरे प्रियो, इन बच्चों के बीच में क्योंकि फिलिप सबसे अलग बच्चा था और क्योंकि इसकी ये बीमारी थी, इसलिए सब लोग उसको नीचे देखते थे। और बाहर सारे बच्चे गए, किसी ने एक फूल लाया, तो किसी ने एक बटरफ्लाई लाया, किसी ने एक छोटा सा रॉक या एक पत्थर का एक टुकड़ा लाकर उसमें डाल दिया, और सब अपने अपने प्रदर्शन को बता रहे थे क्यों उनको लगता है कि ये पुनरुत्थान का चिन्ह है। Since Philip was born with Down syndrome, he was not much accepted in the group. While some kids brought a flower, some brought a butterfly, some even brought a rock to show their assignment. लेकिन इनमें जब फिलिप आया तो उसके प्लास्टिक के अंडे में, उसके बास्केट में कुछ नहीं था, ये खाली थी। ये बच्चा इस खाली बास्केट को लेके आकर पूरे क्लास को दिखाने लगा। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, सारे ही बच्चे उससे मतलब उसका ठट्टा उड़ाने लगे। और टीचर ने भी पूछा, व्हाट इज दिस फिलिप, ये तुम क्या लेकर आए हो, ये तो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। And Philip brought an empty egg, and while everyone was making fun of him, the teacher asked him, Philip, what have you done? तो फिलिप ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये खाली नहीं है, इसके द्वारा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पुनरुत्थान का सबसे बड़ा चिन्ह है। क्योंकि कब्र खाली है, इसीलिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि पुनरुत्थान का चिन्ह ये है कि कब्र खाली है। Philip said that he brought the empty egg because the tomb was empty. अब अचानक से पूरे क्लास में सन्नाटा हो गया, और एक लंबे सन्नाटे के बाद पूरी क्लास जो है उसके लिए ताली बजाने लगी, टीचर भी उसकी दाद देने लगी, और सब लोग मिलकर फिलिप को प्रोत्साहित करने लगे, और बहुत खुशी से माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। क्योंकि सचमुच में प्रियो, कब्र खाली है, और इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कोई समाधि नहीं है, कोई टूम्ब नहीं है, कोई कब्र नहीं है, ना उनके नाम से कहीं कोई स्टैचू है, ये बताने के लिए कि ये एक अच्छा पुरुष था। क्योंकि कब्र खाली है मेरे प्रियो। Somebody write in the chat, कब्र खाली है। There was full silence in the room, but after a long pause, everyone cheered and encouraged Philip because he realized the fact that the tomb is truly empty. We serve the Lord whose tomb is empty. There is no memorial, there is no tomb, there is no other place because the tomb is now empty. मैं विश्वास के बीच में तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप किसी भी विश्वास में जाओ तो आपको किसी न किसी महापुरुष की समाधि मिलेगी। I don't want to compare other faiths, but if you go and check, there are many other memorial places for अगर them. मुसलमान के पास जाओगे तो उनके पास मक्का मदीना, अगर हिंदुओं के पास जाओगे तो उनके पास गंगा है, या फिर अलग अलग ऐसे जगह हैं जहाँ पर भगवानों ने जन्म लिया और उनकी समाधियाँ वहाँ पर है, कहाँ पर वो मरे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यरूशलेम में आज भी इज़राइल के टूरिज्म में कोई जाता है तो एक खाली कब्र दिखाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। If you look at the Muslims, they have Makkah and Medina. If you look at the Hindus, they have the Ganges and the Yamuna river. But if you go and check
Jerusalem, the tomb is still empty. मैं चाहता हूं कोई चैट में लिखो कब्र खाली है. Somebody write in the chat, the tomb is empty. कोई लिखो चैट में. Come on, fill the chat with glory, fill the chat with power, fill the chat with declaration. Christ is risen, Christ is risen indeed. चैट में इस बात की घोषणा कर दे कि यीशु जीवित है. हाँ, वो जीवित है. हालेलुया. क्या आप मेरे साथ हैं? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? How many of you can hear me? Amen. The word of God says in Luke chapter 24, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. लूका उसके 24वें अध्याय में लिखा है कि सबत के पहले ही दिन औरतें कुछ मसालों को लेके कब्रों की ओर गईं. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, लेकिन कब्र में यीशु मसीह की While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दो स्वर्गीय जन वहां पे खड़े हैं. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead?" वो डर के मारे अपने घुटनों पे गिर गई और उस पे उनका सजदा करने लगी. लेकिन उन पुरुषों ने कहा कि तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. उन्होंने यीशु मसीह की बात याद दिलाई कि हाँ, वो जीवित है और अब वो गलील में जाके तुम्हें मिलेगा. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to the others. It was Mary Magdalene, Joanna, mother of James, Mary the mother of James, and the others with them, who told this to the apostles. और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें सुनाई. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. परंतु उनकी बातें उन्होंने कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. परंतु पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उसको अचंबा करता हुआ अपने घर चला Precious गया. friends, the resurrection is real. Jesus is risen. Jesus has risen indeed. पुनरुत्थान सच में हुआ है और यीशु मसीह सच में जीवित यदि है. मैं अपने हाथ में एक कैंडल रखूं, मोमबत्ती रखूं और उसको जलाऊं, तो अचानक से एक अंधेरे रूम को पूरी तरह से रोशनी मिलना स्टार्ट होगी. जब आपके घर में करंट चली जाती है, आपको पता है, आप मोमबत्ती लगाते हो, लेकिन अचानक से अगर उसको मैं बुझा दूं तो फिर से पूरा अंधकार उस रूम में छा जाता है. मोमबत्ती है लेकिन रूम में अंधेरा है. Suppose I light a candle, the whole dark room will glow. But if I blow it out, the whole room will turn out dark again. मेरे प्रियो, सुसमाचार उस मोमबत्ती की तरह है. यीशु मसीह की जिंदगी उस मोमबत्ती की तरह है. यदि पुनरुत्थान ना हो तो फिर से ये पूरी दुनिया अंधकार में गिर जाएगी. The gospel is like that light, and the resurrection is that light. If there is no resurrection, that whole world will fall into तो darkness. फिर यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है केवल एक अच्छे पुरुष की तरह होती हैं. यीशु मसीह की टीचिंग्स केवल एक अच्छे गुरु या एक अच्छे शिक्षक की तरह हो जाती हैं. और इस कैंडल पर यदि रोशनी ना हो या इस सुसमाचार का अंत यदि उस खाली कब्र से ना हो तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ है मेरे प्रियो. If the resurrection did not happen, our faith would have been as dead as others. आप सोचिए इस बात को, जो डिसाइपल्स थे, आमेन, प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, जो डिसाइपल्स, जो चेले थे, इसके पहले यीशु मसीह के अंत तक, उनके अंतिम दिनों तक इतने थके हुए, प्रार्थना में ना बैठ पाने वाले, ऐसे
डिसाइपल्स थे। हाँ, चल तो रहे थे यीशु मसीह के साथ में, काम तो कर रहे थे, लेकिन इतने थके हुए थे। Imagine the apostles till the last days of Jesus, they were walking with him, but they were not as prayerful. लेकिन आप समझिए, सुसमाचार और पुनरुत्थान होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। हम बाइबल में आगे आने वाले भाग में हम जैसे पढ़ते जाते हैं कि इन प्रेरितों ने, उन्हीं चेलों ने क्या क्या काम किए। आप सोचिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या क्या बड़ा फर्क आया। सोचिए इनके जीवन में क्या प्रभाव हुआ। But look at the lives of the apostles after the resurrection of Jesus. They were so mighty, they did so mighty works, but after their faith got rejuvenated due to the resurrection of Christ. प्रेरितों के काम 1 और 8 में ऐसा लिखा है, तुम मेरे गवाह बनोगे, ना कि तुम थिंकर्स या फिलोसोफर्स या सोचने वाले, तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही। The word of God says in Acts chapter 1 verse 8 that you shall be my witness, not just thinkers, not just philosophers, but witness. और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक समय गुड फ्राइडे के दिन जहां सब मर्द लोग भाग गए, नामर्दी का सबसे बड़ा चिन्ह, सब लोग भाग गए। मुश्किल समय में अपने गुरु को छोड़कर सारे ही मर्द भाग गए। लेकिन पुनरुत्थान के बाद एक बड़ा परिवर्तन, पुनरुत्थान के 40 दिन बाद पेंतेकोस्त, पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार का शुरुआत होना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई डरपोक जो इतना डर रहा है, रोमियो शासन से इतना डरना है, अचानक से अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है? इज इट पॉसिबल? Is it possible that the cowards who went and ran away on Good Friday became so mighty after the resurrection and on the day मेरे of प्रियो, Pentecost? यीशु मसीह जब जिंदा हुए, जब फिर से पुनरुत्थान के द्वारा फिर से जब जी उठे, तब मेरे प्रियो चेलों के पास एक के बाद एक जाकर अपने आप को प्रस्तुत करने लगे। Isn't it amazing? After Jesus rose from the dead, he showed himself to each and every of the disciples. The greatest thing about Christianity is not that we are preaching some good things, some moral science, some behavioral change, but the greatest and the most important thing about Christianity is the fact that we believe the resurrection. मसीहत की सबसे बड़ी बात ये नहीं कि हम कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे संस्कार लोगों को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मसीह जीवित है। Come on my friends, एक और जन दिखाओ जो मृत्यु से जिंदा हुआ। लोग इसको डिनाई करते हैं, यहूदी इसको डिनाई करते हैं, मुसलमान इसको डिनाई करते हैं, लेकिन चेले इसको नहीं डिनाई कर पाए, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को आत्मा में नहीं, यीशु मसीह को मांस में फील करके, टच करके, उनके साथ में समय बिताकर, ये इतिहास के रिकॉर्ड्स में जा चुका है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। तभी बीसी से एडी बदलने वाला जो है ये दौर आया, और दौर को पूरी तरह से बीच में से फाड़ने वाला एक व्यक्ति है, तो वो यीशु मसीह है। Show me another person who rose from the dead. The Jews may deny it, the Romans may deny it, but the disciples saw him, touched him, felt him. मैं and चाहता हूं he मेरे प्रियो, split the I time really into two. want you to get excited because you believe a resurrected savior. You're not believing a ideology. You're not believing just a miracle worker. हाँ, miracles होते हैं. We're not believing just good teaching. We're not believing just in good faith doctrine and in how to see and witness these things. But हमारी जो बुनियाद है वो इस पर टिकी है कि कब्र खाली है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हम सिर्फ अच्छे सिद्धांत, अच्छे मूल और शिक्षाओं पे विश्वास नहीं करते हैं, बट आवर फाउंडेशन इज द फैक्ट दैट आवर सेवियर इज रिजन। That is why I want to tell you, the resurrection is everything. The resurrection is everything. He who has a resurrection has everything. Who does not have the resurrection is left with just a bunch of good teaching, good philosophy, good thoughts. But what keeps us alive is the resurrection. Our hope for tomorrow is the resurrection. Our faith in Jesus is because of the resurrection. Why we are so crazy and out of our mind and do not comply to the standards of this world is because of the resurrection, my friends. The resurrection is everything.
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान ही सब कुछ है। हमारा विश्वास, हमारी सारी शिक्षाएं, सब कुछ उस पुनरुत्थान पर निर्भर है। सुनिए पौलुस क्या कह रहा है। 1 कोरिन्थियों 15:12 से 24 के बीच में पौलुस ये कह रहा है, और ध्यान से सुनिए बिकॉज इट्स सो इंपॉर्टेंट। ही इज राइटिंग टू द कोरिंथियन चर्च। ये कोरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है और गंभीरता से लिख रहा है। कह रहा है, बट इफ it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? उस समय उनके बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी, क्या हम सच में जिंदा होंगे, नहीं होंगे, कब्र में जाएंगे, आत्मा में। लेकिन पौलुस कह रहा है, भाई जब यीशु मसीह जिंदा हुआ और यीशु मसीह ने वैसे ही कहा जैसे मैं जिंदा होऊंगा वैसे तुम होंगे, उसका मतलब सोचिए, if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection from the dead? Okay, go ahead. Yeah. पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 12 पद में लिखा है कि इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि क्या मरे हुओं का पुनरुत्थान है या नहीं? If there is no resurrection from the dead, then not even Christ has been raised. यदि मरूहों का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। And if Christ has not been raised, our preaching is useless. यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। And so is your faith. Even your faith is useless. और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। More than that, we are then found to be false witnesses about God. वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। For we have testified about God that He raised Christ from the dead. क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि वो जिला दिया गया। But He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते। And if the dead are not raised, and Christ has not been raised either. और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। Then those who also have fallen asleep in Christ are lost. वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हुए। If only for this life we have hope in Christ, we of all people are most to be pitied. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से ध्यान से सुनिए, पौलुस कोरिन्थियों की सभा से ये कह रहा है, सोचो, लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग यूज करो। वो उनसे कह रहा है कि अगर यीशु मसीह, अगर तुम लोग कह रहे हो कि मुर्दे जिंदा नहीं होते, तो मतलब यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुए। यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ, तुम भी व्यर्थ, हम भी व्यर्थ, जो हम कर रहे हैं वो भी व्यर्थ, सब कुछ बकवास है। लेकिन इस बकवास के लिए इन सारे अपोस्टल्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी मेरे प्रियो। Paul says just use logic if Christ has not risen from the dead, everything is just waste of time, everything is futile and the apostles died for nothing. आप और मैं जो सच्चे मसीह हैं, हम भी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, हम भी जिंदा होने वाले, इसलिए इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है। Today we, the true believers, can risk their lives because we know the fact that Christ has risen. हालेलुया। और 20वें वचन में ऐसे कहता है, but if Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं, for since death came through a man, the resurrection of the dead came also through a man. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी For आया। as in Adam all die, so in Christ we all will be made alive. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। Come on मेरे प्रियो, इस्लाम में लिखा है आदम और हवा थे, यहूदी तोरा में लिखा है आदम और हवा थे। वो सिर्फ शुरुआत है, उसकी जो कंप्लीशन है वो हमारे ग्रंथ में, इस सुसमाचार में है कि यीशु मसीह वो लास्ट एडम है, आखिरी आदम है जो जिंदा हुआ।
स्टोरी इनकम्प्लीट है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बिना ये कहानी इनकम्प्लीट है। The stories in Islam and the Jewish books are incomplete if not Jesus had been resurrected. हालेलुया। 23 में ऐसा लिखा है, बट ईच इन टर्न क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट्स, देन व्हेन ही कम्स दोज हु बिलोंग टू हिम, देन द एंड विल कम when he hands over the kingdom of God to the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सारा सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को पांव के तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। Hallelujah, precious people of God. Somebody write in the chat, Christ is risen, Christ is risen indeed. लिखिए, कोई चैट में जरूर से लिखे, परमेश्वर जीवित है, हाँ मसीह जीवित है। हालेलुया। सुनिए, हमारी जो फेथ है वो एक मोटिवेशनल टीचिंग नहीं है। Our faith is not a motivation speech. क्योंकि ये बिना सामर्थ के और बिना पुनरुत्थान के सामर्थ के हमारे पास विश्वास ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। Had there been no resurrection, it would have been empty without दुनिया power. में टीचिंग है, चर्च के अंदर टीचिंग है। दुनिया में बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े संत बैठते हैं, बड़े बड़े लोग शिक्षा देते हैं, और मसीह के अंदर भी पासबान, अपोस्टल्स, लीडर्स टीचिंग देते हैं। फर्क क्या है? There are many good teachings in the church. There are many teachings outside the church. There are many sages outside the church. There are many good pastors in the church. एक ही फर्क है मेरे प्रियो, पुनरुत्थान की सामर्थ आपको कलीसिया के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति है। The only difference is the resurrection power, because of which you can see so many miracles happening in the पुनरुत्थान church. से ही हमारा जीवन बदलता है मेरे प्रियो, नहीं तो केवल मृत्यु और लॉस का डर और भय हमेशा आपको और मुझे रहेगा। The resurrection power is the reason we don't fear the loss and death. क्यों हम नहीं डरते मेरे प्रियो? आपके और मेरे पास एक बुनियाद है ना डरने का, क्योंकि हम जानते हैं यदि इस दुनिया में कुछ भी हमारे साथ हो जाए, हम अपने पलके खोलेंगे और स्वर्ग में हम फिर से पुनरुत्थान को महसूस करेंगे। ना ही केवल आत्मा में, लेकिन शरीर का भी पुनरुत्थान आ रहा है मेरे प्रियो। We do not fear because we know that the moment our eyes are closed, it will open in heaven, and not just a spiritual awakening, we will have the awakening of the bodies as well. हालेलुया। कई लोग पाप की साइकिल्स में चलते रहते हैं क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ को उन्होंने नहीं चखा। जो पुनरुत्थान की सामर्थ को चखता है वो पुनरुत्थान की सामर्थ में चलने लगता है और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तरह उसी पैटर्न में चलने लगता है मेरे प्रियो। Many people fall into the cycle of sin, but the moment they receive the resurrection power of Christ, they will break through the cycle and be free. Amen. You know, power is defined by the force. The world glorifies dominance and control, but without resurrection, it is hard to believe that love truly overcomes power. सोचिए. Let me explain that. पूरी दुनिया में प्रभुता और नियंत्रण की वाहवाही की जाती है, लेकिन बिना पुनरुत्थान के ये सब के बारे में सोचना व्यर्थ है। इस दुनिया में या तो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है अमेरिका इजराइल के बीच में, दीज आर बिटवीन पावरफुल नेशंस। ये सामर्थी देशों के बीच में, देशों के साथ बाकी कमजोर देशों को दबाने की बात हो रही है। लेकिन सोचिए, ये सब सामर्थ के ऊपर एक सामर्थ है और वो है पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की शक्ति जो बाकी पूरी दुनिया पर भारी है। Right now you can see the fight between the powers, but there is a power which is the resurrection power which is above all others. और यदि पुनरुत्थान ना हो तो इस दुनिया में कोई आशा नहीं है। सोचिए,
क्या है आशा दुनिया में? वॉर होगा, लोग मरेंगे, चीजें खत्म होंगी, उसके बाद क्या? किसी के पास कोई आशा नहीं है। लोग फिर इसी जीवन के लिए जी रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मसीह लोग इस जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमको अंत पहले से पता है। हमको पता है कि जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, आपका भी पुनरुत्थान होने वाला है। Had there been no resurrection, there would have been no hope. Everyone would have just died in the war. But since there is resurrection, we have a hope that we will rise again. Hallelujah. N.T. Wright said, the resurrection is the decisive event demonstrating that God's kingdom has broken into history. एन.टी. राइट ने इस बात को कहा कि पुनरुत्थान ने इस बात को निश्चय कर दिया कि परमेश्वर का राज्य इतिहास में लिख दिया गया है। And C.S. Lewis, जैसे पौलुस ने कहा, अगर हम पुनरुत्थान में नहीं विश्वास करते तो हम झूठे गवाह हैं। सोचिए, झूठे गवाह मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहां पर, कौन से कानून में, कौन से केस में आपने कभी भी देखा कि कोई आदमी झूठी गवाह देने के लिए तैयार है ताकि उसका प्राण चला जाए? लॉजिक नहीं है। Doesn't make sense. C.S. Lewis also said that Christianity is false, is of no importance, and if true, is of infinite importance. Hallelujah. जैसे C.S. Lewis ने कहा, मसीहत अगर झूठी है तो इसका कोई मूल नहीं, फालतू, सबसे फालतू चीज है। यदि ये सच्चा है तो हमारे लिए सबसे असीम महत्व की बात है। Are you with me? Christianity is false, is of no really importance, and if true, it is of infinite importance. मार्टिन लूथर ने ऐसे कहा, our Lord has written the promise of resurrection not in books alone, but in every leaf in springtime. मार्टिन लूथर ने इस बात को कहा कि हमारे परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बारे में सिर्फ किताबों में नहीं, लेकिन इस समय के हर जर्रे में लिख दिया है। Hallelujah, precious people of God. कई लोग कहते हैं the disciples made it up. कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। Many people say that the disciples have made it up. यहूदी लोग कहते हैं चेलों ने सबको बेवकूफ बनाया। मुसलमान भी कहता है आखिर में यहूदा को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया और बाकी दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है। Think about it. The Jews and the Muslims says that there was no true crucifixion. The Muslim says that Judas was hanged instead of Jesus. Hallelujah. ये लोग तो पहले प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। पतरस को कहा गया प्रार्थना करो, वो सो गया, खराटे लेकर सो गया। ऐसे लोग जो इतने कमजोर थे, इतने बुजदिल थे, भागे, क्रूस से दूर दूर तक भागे। ये लोग बाद में फिर से इकट्ठा हुए और उन लोग ने ऐसी साजिश रचाई कि हम सबको बेवकूफ बनाएंगे, ये बोलकर कि पुनरुत्थान सचमुच में हुआ और हम भी उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। कोई लॉजिक नहीं है मेरे प्रियो। It does not make sense. It does not make sense that the disciples who were so coward that they ran off during the crucifixion will come together, they will scheme about the resurrection. एक दूसरी अफवाह ऐसी है कि उन्होंने शरीर को चुराया, रात में शरीर को चुरा लिया। There's another myth that Jews say that they stole the body of Jesus. हाँ, ये मछुआरे अचानक से बॉडी बिल्डर्स बन गए, निंजा फाइटर, सुपर हीरोज बन गए। इतने बड़े पत्थर को जो दो सैनिक, रोमियो सैनिक उसको गार्ड करे थे, अचानक रात में आके उसके शव को छुड़ा लिया। राइट? डज दैट मेक सेंस? Yes, totally. The disciples became like ninjas and stealthily came and rolled the stone and took away the body of Jesus despite the Roman soldiers standing there. कोई कहता है कि पुनरुत्थान सब छोड़ो, मेन है यीशु मसीह के टीचिंग्स पर फोकस करो। Some say just focus on the teachings of Jesus. Resurrection does not matter. तो आप प्लेन से टेक ऑफ करते हो, आपको लैंड करने की क्यों लैंडिंग क्यों जरूरी है? फ्लाइट में आपने स्नैक्स खा लिया, सैंडविच खा लिया, आपने जो भी, उसकी बात करो ना। Then, so what you do? You go in the plane, you sit, you relax, you eat the snacks, and don't land. मेरे प्रियो, अगर फ्लाइट टेक ऑफ हुई है तो फ्लाइट लैंड भी होती है। अगर पाप इस दुनिया में आया तो पाप का हल भी होना है। अगर मृत्यु इस दुनिया में आई तो मृत्यु का हल भी परमेश्वर ने निकाला और यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसी का हल है। स्नैक्स की बात तो हम बाद में कर सकते हैं, शिक्षाओं की बात तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेन लैंड हो चुकी है, यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकले हैं। If the plane took off, the plane must land as well. If the sin came in this world, the solution must come as well. If the death came, the
the resurrection should also be there. There can be snacks, there can be food, but the plane must land first. हालेलुया, प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, क्या आप मेरे साथ हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग इस वक्त अपने पुनरुत्थान की खुशी में हैं, आनंद में हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ? आई वांट टू डिक्लेयर दिस ओवर यू. How many of you are excited over the fact that our Christ is risen? मैं आपके ऊपर घोषणा करना चाहता I want to share a couple of things with you. Without resurrection, there is no Christianity. हूँ. बिना पुनरुत्थान के कोई मसीहत ही नहीं है. मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज मसीहत पूरी दुनिया में फैल रहा है तो उसका एक ही कारण है, वो है पुनरुत्थान. The reason that the Christianity is spreading all across the globe is simple: the resurrection. हालेलुया. इस वक्त जो वॉर चल रहा है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से सारे ऑयल टैंकर्स पास होते हैं, इस वक्त केवल 20% ऑयल टैंकर्स वहां से पास कर पा रहे हैं. Right now you can see the tensions at the Strait of Hormuz. Only the 20% of global oil supply is running through that. और अगर वो भी बंद हो जाए तो हर देश में अकाल सा माहौल हो जाएगा. तेल नहीं मिलेगा, एलपीजी नहीं मिलेगी, एनर्जी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी. और मेरे प्रियो, ये बहुत ही पावरलेस सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. And if even that gets shut off, there will be no more fuel, there will be no more running of उसी vehicles रीति and से everything मेरे will be प्रियो, gone. मसीहत ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह, अगर आप उसमें रेजरेक्शन को हटा दो तो कुछ भी नहीं बचेगा. मसीहत ही नहीं चल पाएगी, पावर ही नहीं रहेगी. हम केवल सबसे बड़े कमजोर व्यक्ति देखेंगे इस पूरी दुनिया में. If had there been no resurrection, it would have been powerless Christianity. सोचो एक बात को, जब कोई भी लीडर, बड़ा लीडर खत्म होता है तो हम उसके दौर को खत्म होते 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 उसकी सिविलाइजेशन को डूबते हुए, बहुत सारे महाराजा हैं इंडिया में जिनको बेरहमी से मारा गया, उनके बारे में आज आप ना सुनते हो, ना उनके राज्य के बारे में सुनते हो. You can think about many leaders. When they die, their movement, their influence fades eventually. बहुत सारे जिन जिन राजाओं को मारा गया, धीरे धीरे उनका राज्य भी डूब जाता है, खत्म हो जाता है. लेकिन इस केस में हमारा राजा मारा गया, लेकिन उसका राज्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. उसकी तारीफ बढ़ती जा रही है, लोग और उसके पास आते जा रहे हैं, उसके फॉलोअर्स होते जा रहे हैं. क्यों? वाई? टेक्निकली देखा जाए तो राजा मर गया, यीशु मसीह मर गया, उसके जो फॉलोअर्स है पूरी तरह से खत्म होके नाश हो जाना चाहिए, है कि नहीं? Our Jesus died, and logically his influence would have been gone down and down and down, but his kingdom is rising and rising and rising. Does that make sense to you? क्योंकि मेरे प्रियो, हम प्रेरित के काम इसके दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि एक और बड़ी घटना हुई और पेंतेकोस्ट उन पर आया और पवित्र आत्मा उन पर आया. लेकिन उससे लेकर पहले 40 दिन तक, पुनरुत्थान से लेकर पेंतेकोस्ट तक 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखता गया, नजर आता गया, मिलता गया, खाना खाया, उनके साथ में वास किया, उनके साथ में रुका, ठहरा, बातें करी. उसके शरीर को लोग फील कर पाए. हालेलुया. Because before Pentecost and after the resurrection for 40 days, Jesus came and he lived and he walked and he ate with the disciples. लूका 24 और 21 में ऐसा लिखा है, पर हमने आशा की थी कि वह इस्राएल का छुटकारा देने वाला है, और इस सब बात को हुए आज 3रा दिन है. Luke chapter 24 verse 21 says, but we hope that he was the one who was going to redeem Israel. And what is तीसरे दिन पर मेरे प्रियो, एक ही शॉट में बहुत सी घटनाएं हो रही थी. यीशु मसीह बहुत से लोगों को एक ही शॉट में नजर आ रहे थे, वो भी बॉडी में, फ्लैश में. आमेन. On the third day, Jesus appeared to many in his bodily form. Hallelujah. Acts 2:32, God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of it. प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर ने इस यीशु मसीह को वापस से जिंदा किया और हम सब उसके गवाह हैं. Precious people of God, Paul, who was a big opponent of Christianity, amen, he dedicates his life to preaching the gospel. Why? And in his gospel, the whole time he says, God raised up Christ from the dead. God raised up Christ from the dead. God raised up Christ from the dead. हर जगह जा जाकर वो गवाही दे रहा है. क्यों?
पौलुस जो यीशु मसीह का सबसे बड़ा विरोधी था, वो भी एक बहुत महान प्रचारक बन गया और इसी बात को कहता रहा कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। क्यों? हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? एक कहानी है जेकब डी शाजर के बारे में। He was a US Army Air Force staff sergeant who took part in the Doolittle raid on Japan during World War II. Okay? There's a story about Jacob D. Shaza. He was a US Air Force staff who took part in the Doolittle raid. After the attack on Pearl Harbor, he was filled with rage, convinced that justice meant by making the enemy pay. पर्ल हार्बर के ऊपर हमले के बाद वो गुस्से से भर गया और वो इस बात का निश्चय कर लिया कि वो उन लोगों को सबक सिखाएगा। But then his plane crashed. He was captured by the Japanese and he became a prisoner of war. लेकिन कुछ समय बाद उसका प्लेन क्रैश हो गया और वो खुद ही जेल में कैद हो गया। For years he endured torture, starvation and watched fellow soldiers die. War had done what it always does, it deepened hatred and broken people. कई सालों तक उसने अपने ऊपर प्रताड़ना सही, भूख सही और अपने साथियों को मरते हुए देखा, जिसके कारण वो और ज्यादा टूट गया। Then something unexpected happened. In prison, D. Shazer began reading the Bible and he encountered the reality of the risen Christ. और कुछ समय बाद जब उसने बाइबल को पढ़ना शुरू करा, तब उसने मसीह के बारे में सच को जाना। If Jesus truly rose, then love was not defeated at the cross, it had already overcome. उसने इस बात को समझा कि यदि यीशु मसीह सच में जी उठे हैं तो प्रेम का अंत नहीं हुआ है। D. Shazer's life changed. After the war, instead of seeking revenge, he returned to Japan as a missionary. और डिशाजर की ज़िंदगी में बदलाव आ गया और वो जापान वापस गए, बदला लेने के लिए नहीं लेकिन सुसमाचार का प्रचार करने। And all those people that tortured him in jail, he forgave them and he chose love over retaliation, even building relationships with his former enemies. और उनसे बदला लेने के बजाय उनसे उसने प्रेम करा, अपने उन कैदियों से भी उसने प्रेम किया। Precious friends, love is stronger than war because of the resurrection. प्रेम जंग से, युद्ध से ज्यादा बड़ा है पुनरुत्थान के कारण। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जेकब डी शाजर यूएस आर्मी के एक बहुत बड़े सैनिक थे और बहुत क्रोध से भरे हुए, और उन्होंने सोचा जब पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक हुआ, उन्होंने सोचा मैं जापान में जाकर बॉम्ब्स गिराकर इनको मार डालूंगा, और अपनी जहाज को ले गए। लेकिन उनका जहाज जो है जहाज ने रॉकेट को खाकर जहाज नीचे गिरा। ये कैदी बन गए, जेल में गए, और जेल में इनका क्रोध और भर उठा और उन्होंने सोचा जिस दिन मैं निकलूंगा सब दुश्मनों को मैं ख़त्म कर दूंगा। आप सोचिए, ये सैनिक लोग हैं और सैनिक लोग वैसे ही दिमाग से थोड़े से वैसे थे। लेकिन फिर जेल में उनको किसी ने सुसमाचार दिया, उन्होंने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़कर यीशु मसीह के साथ में उनका मुठभेड़ हुआ। और ख़ास करके जो पुनरुत्थान का जो पैसेज है उसको जानने के बाद उन्होंने कहा वाकई में अगर यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, अगर ये सब बातें हकीकत है, एक शाऊल यदि पौलुस बन सकता है तो इसका मतलब सुसमाचार सच्चा है। यदि सुसमाचार सच्चा है तो इसका मतलब प्रेम अंत में जीतता है। इसका मतलब जंग और प्रेम दोनों के बीच में प्रेम जीतता है, क्योंकि जंग जब प्रेम को मारने की कोशिश करता है तब प्रेम कब्र में जाता है, लेकिन कब्र उसको नहीं पकड़ सकती। तो कब्र से बाहर प्रेम फिर से जिंदा होता है और अपने सारे दुश्मनों को माफ कर देता है। यही डी शाजर मेरे प्रियो फिर से छुटकारा पाने के बाद, छुड़ाए जाने के बाद यूएस आया, अमेरिका आया और फिर मिशनरी बनकर फिर जापान गया, जहाँ पर उसके इतने सारे दुश्मन थे, जहाँ पर लोगों ने उसको जेल में टॉर्चर किया, जहाँ पर लोगों ने उसकी जहाज को नीचे गिराया और बहुत खूब उसको सताया। उन लोगों के साथ में जाकर इसने दोस्ती करी और वहाँ पर मिशनरी बनकर सुसमाचार बांटने लगा। मेरे प्रियो, क्योंकि पुनरुत्थान सच्चा है इसीलिए ये डी शाजर फिर से वहाँ जा पाया। आप मेरे को बताओ और कहाँ पर आपको ऐसी कहानी सुनने मिलेगी? Amen, precious people of God. Yeah, you don't need to explain that. We already did that. That's fine. But आप सोचिए इस बात को मेरे प्रियो। Isaiah 53 verse 7 says, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter. यीशु मसीह खामोश रहा।
यशायाह उसका 53 और उसके साथ में लिखा है कि उसे सताया गया लेकिन वो चुप रहा, उसने अपना यीशु मुंह भी ना मसीह खोला। इसलिए खामोश रहा मेरे प्रियो, इंसानों के साथ में खामोश रहा, लेकिन आत्मिक दुनिया में कुछ और चल रहा था मेरे प्रियो। कलोसियों 2 और 15 में ऐसा लिखा है, हैविंग डिसआर्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटीज ही मेड अ पब्लिक स्पेक्टिकल ऑफ देम, ट्रायम्फिंग ओवर देम बाय द क्रॉस। और उन्होंने उन शक्तियों और अधिकारियों को निशस्त्र करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और वापस क्रूस पर उनको टांग दिया। Hallelujah. 3 John 12:24 says, Verily, truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. यूहन्ना 12:24 कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे गिरकर ना मर जाए तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। Are you with me, precious people of God? क्या आप मेरे साथ प्रभु हैं? के लोग? Are you with me? The resurrection gives us the dominion. पुनरुत्थान हमें प्रभुता की सामर्थ्य देता है। Resurrection gives you the dominion, precious people of God. प्रभु के लोगों, पुनरुत्थान आपको वो प्रभुता की सामर्थ्य देता है। सोचिए, लाजर की कहानी देखिए, 4 दिन हो चुके हैं, लाजर मर चुका है, अंदर उसकी जो बॉडी है सड़ रही है, बदबू आ रही है। उसके बीच में यीशु मसीह जाते हैं और कहते हैं, लाजर बाहर निकला, जोर से चिल्लाते हुए। लाजर उन्हीं कपड़ों में बाहर आता है और फिर से जीवन पाता है। पुनरुत्थान वहां पर हम देख पाते हैं। You can see the life of Lazarus. He was dead for 4 days. The tomb was stenching. But the moment Jesus said, Lazarus, come out, he came out the way as he was, and there was life instead of death. हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, पुनरुत्थान यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। और लाजर को वो बुला सकता है, आपके मरे हुए स्थिति को बुला सकता है। यदि कब्र में सूखी हड्डियां हैं, सड़ रही हैं, उन सूखी हड्डियों में फिर से मांस आ सकता है, फिर से एक आर्मी खड़ी हो सकती है, फिर से कोई गया गुजरा केस और गई गुजरी आपकी जो सिचुएशन है, फिर से यीशु मसीह खड़ा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। Because Jesus said that resurrection is not just an event, I am the resurrection, and that's why death things can come to life in the name रेजरेक्शन of Jesus. आपके पद को चेंज कर देता है मेरे प्रियो। अब आप विक्ट्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, विक्ट्री से लड़ रहे हैं। आप जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीत से लड़ रहे हैं मेरे प्रियो। Now resurrection can change your position from fighting for victory to fighting in victory. मैं आप पर ये घोषणा करना चाहता हूं कि अब से आप कभी भी लड़ाई जीतने के लिए नहीं करोगे, लड़ाई जीतने की पोजीशन वहां के स्थान से करोगे। आपको केवल ये विश्वास करना है, ग्रहण करना है, और आप कभी नहीं हारोगे मेरे प्रियो। आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि पुनरुत्थान आपके लिए है। I want to declare this over you that you will no longer fight for victory, but you will fight from a position of victory. Romans 8:11 says, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. रोमियो 8:11 में लिखा है, अगर उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया है तुम में बसता है, तो वो जो मसीह का जिंदा किया तुम्हारे नश्वर शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जीवित करेगा, That's जो why तुम में बसता 1 है। Corinthians 15:55 says, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु कहाँ कांटा कहाँ रहा? तेरा कांटा कहाँ रहा? Hallelujah. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? That's why 1 Corinthians 15:55 says so. Precious people of God, Christ is risen. This is the best day of our lives. This is the best day in 2026. We are standing on the resurrection की कब्र खाली है। इसलिए ये 2026 का सबसे अच्छा दिन है, because Jesus has risen. I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, and I want to declare this with you in English and in Hindi. हम इसको साथ में घोषणा करेंगे। आइए हम मिलके घोषणाओं को करेंगे। Amen. Let us pray and say, Heavenly Father, we come before you with gratitude for the victory you have already secured through the resurrection of Jesus.
Heavenly Father, we come before you with the gratitude of victory you have already secured through the resurrection of Jesus. Thank you that our faith is not built on ideas, but on a living reality that has changed what is true for us today. Thank you that our faith is not built on ideas, but on a living reality that has changed to what is true for us today. We declare that sin is no longer our master. We walk in the authority of your grace. Romans 6:14. We declare that sin is no longer our master. We walk in the authority of your grace according to Romans 6:14. We declare that we are not striving from defeat, but living from victory, from the victory you have already given. 1 Corinthians 15:57. We declare that we are not striving from defeat, but living from the victory you have already given. We according to declare that 1 the same Corinthians Spirit 5. that raised Jesus from the dead is alive in us, strengthening and guiding us daily. Romans 8:11. We declare that the same Spirit that raised Jesus from the dead is alive in us, strengthening and guiding us daily. We declare that love has overcome every force of darkness, and we choose to walk in that love. We declare that love has overcome every force of darkness, and we choose to walk in that love. Colossians 2:15. We declare that even death has lost its power over us. We declare that even death has lost its power over us, And we have an unshakable hope according to 1 Corinthians 15:55. and we live with unshakable hope according to 1 Corinthians 15:55. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. We're going to Amen. declare in Hindi as well, and David Bible lead us and I'll follow. आइए हम मिलके घोषणा करें। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त की हुई विजय के लिए धन्यवाद के साथ। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त हुई विजय के लिए धन्यवाद के साथ। धन्यवाद कि हमारा विश्वास केवल विचारों पर नहीं बल्कि एक जीवित सच्चाई पर आधारित है। धन्यवाद कि हमारा विश्वास केवल विचारों पर नहीं बल्कि एक जीवित सच्चाई पर आधारित है, जिसने आज हमारे लिए सब कुछ बदल दिया है। जिसने आज हमारे लिए सब कुछ बदल दिया है। हम घोषणा करते हैं कि पाप अब हमारा स्वामी नहीं रहा, हम आपके अनुग्रह के अधिकार में चल रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि पाप अब हमारा स्वामी नहीं रहा, हम आपके अनुग्रह के अधिकार में चल रहे हैं। रोमियो 6:14 के अनुसार। हम घोषणा करते हैं कि हम हार की स्थिति में संघर्ष नहीं कर रहे। हम घोषणा करते हैं कि हम हार की स्थिति से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस विजय से जी रहे हैं जो आपने पहले से ही दे दी है। 1 कुरिन्थियों 15:57 के अनुसार। बल्कि उस विजय से जी रहे हैं जो आपने पहले ही से दे दी है। 1 कुरिन्थियों 15:57। हम घोषणा करते हैं कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, हम घोषणा करते हैं कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जीवित किया, हमारे भीतर वास करती है, हमें सामर्थ देती है और मार्गदर्शन करती है। हमारे भीतर वास करती है, हमें सामर्थ्य देती है और मार्गदर्शन करती है। रोमियो 8:11 के अनुसार। हम घोषणा करते हैं कि प्रेम ने अंधकार की हर शक्ति पर विजय पाई है। हम घोषणा करते हैं कि प्रेम ने अंधकार की हर शक्ति पर विजय पाई है, और हम उस प्रेम में चलना चुनते हैं। और हम उस प्रेम में चलना चुनते हैं। कोलोसियों 2:15 के अनुसार। कोलोसियों 2:15 के अनुसार। हम घोषणा करते हैं कि मृत्यु ने अपनी शक्ति खो दी है और हम अटल आशा में जीते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:55 के अनुसार। हम घोषणा करते हैं कि मृत्यु ने अपनी शक्ति खो दी है और हम अटल आशा के साथ जीते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:55। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। So yes, family, now we have come to the time of end, and I just want to thank all of you that you have been a part of our Jago Sunday service. परिवार, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस समय को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाया है। And once again, I just want to wish all of you a very 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 blessed resurrection day. एक बार फिर से पुनरुत्थान की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हमारा विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हुआ है। We believe
believe that today's word have blessed you. और परिवार हम फिर से मिलेंगे अगले रविवार को ठीक इसी समय पर. तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की. Be blessed, praise the Lord, and once again thank you all of you.